Hello everyone. Let's start the next topic of the unit number 5 of the digital system, and the topic is time division multiplexing. It is also known as TDM. This is the block diagram of basic multiplexing technique. Here a multiplexer is used for n number of inputs and a single link is used to transmit the input at the receiving side, and at the receiving side there is a demultiplexer applied, and the output of demultiplexer is the actual output at the receiving side. Transmission channels are very expensive. It is often two communicating entities do not fully utilize the full capacity of that channel. To increase the efficiency of the channel, the capacity of the channel is shared. This is the multiplexing. We are using the channel in sharing basis. Same diagram shows the multiplexing techniques: multiplexer, demultiplexer at the receiving side, and a single link for transmission. There are n inputs at the multiplexer in the transmitting side, and again n output will be received at the receiving side. Time division multiplexing. In time division multiplexing, several connections share the high bandwidth of the channel. Here, multiple signals are carried on single channel by interleaving the portions of each signal in time. There are multiple signals available at the input, and this multiple signal will be carried on a single channel by alternating the time slot. TDM is digital multiplexing technique. It is used for digital data. Using TDM, the channel capacity can be completely utilized. Here, message sent through the physical channel separately by each user should be reassembled at the receiving end into a full message. यहाँ पे जो भी n नंबर ऑफ मल्टीपल इनपुट्स यहाँ से जो सेपरेट ट्रांसमिट हो रहे हैं थ्रू अ सिंगल चैनल, that should be fully received at the receiving end in a full form. हर एक सिग्नल एज इट इज़ आउटपुट पे मिलना चाहिए. ठीक है, स्लॉट्स में उसको हमने सेंड किया है. इसको हम कैसे समझ सकते हैं? यूजिंग दिस फिगर. Here this is a multiplexer and n number of inputs are applied at the input side, and at the output side there is a demultiplexer. So this is signal 1, signal 2 and signal 3. यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे ये जो दिख रहा है हमें, दिस इज़ द चैनल. हम चैनल में टाइम स्लॉट्स डिवाइड करे हुए हैं. ठीक है, ये एक फ्रेम बन जाएगा 132 का,
अगेन 132 का नेक्स्ट स्लॉट 132 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिग्नल 1 का कुछ पोर्शन हमने लिया, उसको चैनल से ट्रांसमिट कर रहे हैं। देन सिग्नल 2 का चैनल जो हमारा सिग्नल 2 है, सिग्नल 3 है, उसका हमने कुछ पोर्शन लिया, वो हमने चैनल पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। देन सिग्नल जो सेकंड नंबर का है उसको हमने ट्रांसमिट किया। ठीक है, अगेन हम 132 फिर 132 इस तरह से हम ले रहे हैं। ठीक है, 132 जो है दिस इज सिग्नल नंबर 1, सिग्नल नंबर 3 एंड सिग्नल नंबर 2। तो इन सिग्नल्स के हम कुछ पार्शियल पार्ट हम चैनल के थ्रू पास कर रहे हैं। तो दीज आर फ्रेम्स। ठीक है, ऐसे फ्रेम्स बन गए हैं, अलग अलग स्लॉट हैं। तो इतने स्लॉट में ये मैसेज जाएगा, नेक्स्ट स्लॉट में दूसरा मैसेज जाएगा, नेक्स्ट स्लॉट में अगेन एक मैसेज पास होगा। तो इस तरह से फुली हम इस कोई भी हमारे मल्टीपल सिग्नल्स को साथ में भेज सकते हैं। एंड रिसीविंग साइड में डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, सिंगल इनपुट है एंड मल्टीपल आउटपुट हम यूज़ करते हैं। तो इस सिंगल इनपुट क्या हो जाएगा हमारा, जो चैनल से हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ अप्लाइड एट द डीमल्टीप्लेक्सर। और डीमल्टीप्लेक्सर के आउटपुट पे हमें फुल मैसेज मिलेगा हर एक यूज़र का। अगेन टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। AEC यहाँ पे 3 यूज़र्स हैं ना, यहाँ पे 3 डिफरेंट मैसेज हैं, A3 A2 A1 इस A के लिए। इस E से जो मैसेज है वो है B3 B2 B1। इस वाले जो थर्ड वाले सिस्टम से जो मैसेज पास होना है वो है C3 C2 C1, राइट। और वी हैव टू अप्लाई दिस सिग्नल्स एट द मल्टीप्लेक्सर। एंड मल्टीप्लेक्सर से अब हमें क्या करना है, हमें हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करना है थ्रू दिस चैनल। ठीक है, अब चैनल में हमें कैसे करना है, हमें स्लॉट के फॉर्म में करना है। तो स्लॉट कैसे होगा, पहले हम जैसे यहाँ से देखें, पहले C3 पास हुआ, ठीक है, फिर B3 पास हुआ, फिर A3 भी पास हुआ। इसके बाद ठीक है, एक स्लॉट ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या पास हो रहा है, C2 B2 एंड A2, देन C1 B1 एंड A1। तो इस तरह से डिफरेंट स्लॉट पास कर दिए। ठीक है, एंड दैट विल बी रिसीव्ड एट द डीमल्टीप्लेक्सर साइड, रिसीविंग साइड थ्रू डीमल्टीप्लेक्सर। This is the block diagram for time division multiplexing. These are low pass filters at the input side. These are the low pass filter. The low pass filter means that pass a frequency, एक particular frequency के below जो सिग्नल है उसको ही वो पास करेगा, उससे हायर फ्रिक्वेंसी को वो स्टॉप करेगा। ठीक है, तो ये होते हैं लो पास फिल्टर। यहाँ पे हम जो फ़िल्टर यूज़ करते हैं दे आर एंटी अलाइजिंग फ़िल्टर्स। ठीक है, देन कम्यूटेटर, पल्स मॉड्यूलेटर, कम्युनिकेशन चैनल, पल्स डीमॉड्यूलेटर, एंड एट द रिसीविंग साइड देयर इज डीकम्यूटेटर, एंड अगेन लो पास फिल्टर एंड आउटपुट एट द रिसीविंग एंड। Here each input message signal is first restricted in bandwidth by a low pass filter which is anti-aliasing filter. It is used to remove the frequencies that are non-essential to an adequate signal representation. ठीक है, which is not useful, that frequency will be removed from the signal. ठीक है, कोई भी हमारे सिग्नल यहाँ से पास हो रहे हैं कुछ, तो उसमें
एक्सेस एकदम हायर साइड की जो फ्रिक्वेंसी है उसको वो रिमूव कर देगा सिग्नल को, और सिर्फ इसेंशियल सिग्नल ही पास करेगा. Then the low pass filter output are then applied to a commutator, which is usually implemented using electronic circuitry. The function of the commutator is to take narrow samples of each of the n input. जितने भी inputs मैसेज आ रहे हैं, यहाँ से जो different मैसेज आ रहे हैं, इनके नैरो सैम्पल्स ये लेता जाता है. ठीक है, एट अ रेट दैट इज स्लाइटली हायर देन नाइक्वेस्ट रेट. ठीक है, नाइक्वेस्ट रेट को ये फॉलो करेगा. नाइक्वेस्ट रेट हमने पढ़ी थी, हमने पहले शायद FM यूज़ किया था. ठीक है, यहाँ पे FM की जगह हमने W यूज़ कर लिया, बट बोथ आर सेम. तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू टॉइस ऑफ FM, दैट इज़ नाइक्वेस्ट रेट. ठीक है, तो नाइक्वेस्ट रेट से स्लाइटली हायर ये लेके चलता है यहाँ पे, वेयर W इज़ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. W इज़ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द एंटी अलाइजिंग फ़िल्टर. ठीक है, यहाँ पे जो हम एंटी अलाइजिंग फ़िल्टर ले रहे हैं उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है. कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है? कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी जिसके बाद, ठीक है, जैसे हम लो पास फिल्टर की बात कर रहे हैं, तो लो पास फिल्टर में एक लोअर साइड की फ्रिक्वेंसी, एक हायर साइड की फ्रिक्वेंसी है, बीच में एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है. ठीक है, तो लो पास फिल्टर नाम से समझ में आ रहा है, लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा और हायर को स्टॉप करेगा. बट ये लो और हाई जो है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे एक हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लेके चल रहे हैं. जिस फ्रिक्वेंसी के पहले तक का जो सिग्नल है दैट इज़ लो पास सिग्नल, लो पास फ्रिक्वेंसी, एंड उस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के आगे का जो सिग्नल है, हायर जो फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल है दैट इज़ हाई फ्रिक्वेंसी. ठीक है, तो लो पास मतलब क्या होगा? कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के पहले वाला जो सिग्नल है उसको पास कर रहा है. तो यहाँ पे जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ W. Then following the commutation process, the multiplex signal is applied to a pulse modulator. And here the purpose of this pulse modulator is to transform the multiplex signals into suitable form of signal for transmission over a common channel. At the receiving end of the block diagram, the received signal is applied at the pulse demodulator. पल्स demodulator है, रिवर्स ऑपरेशन करेगा पल्स मॉड्यूलेटर का. ठीक है, देन द नैरो सैम्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द appropriate low pass reconstruction filters by means of decommutator, which operates in synchronism with the commutator in the transmitter. Exactly अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हम रिसीविंग साइड में इनपुट हमने अप्लाई लिए हैं. ठीक है, हम जैसे इस फिगर से अब देखें. ठीक है, हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया है कि हर एक ब्लॉक का एग्जैक्टली क्या यूज़ है. अब हम यहाँ से फिगर से देख लेते हैं. ठीक है, हमारे पास ये नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं, n नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं. ठीक है, वी हैव टू अप्लाई दिस n नंबर ऑफ़ इनपुट थ्रू द लो पास फिल्टर. ठीक है, ये जो लो पास फिल्टर हैं दीज आर एंटी अलाइजिंग फिल्टर. ठीक है, एंटी अलाइजिंग हमने पढ़ा था जब हम सैम्पलिंग पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमने अलाइजिंग देखा था. जब सिग्नल्स में ओवरलैपिंग वाला जो पार्ट हमने देखा था दैट इज़ कॉल्ड द अलाइजिंग. ठीक है, तो हेयर वी आर यूजिंग एंटी अलाइजिंग फिल्टर्स. ठीक है, देन दिस नंबर ऑफ इनपुट्स आर अप्लाइड एट लो पास फिल्टर and output of this low pass filter, यहाँ से हम देख सकते हैं output of this low pass filter is connected और applied at the commutator. ठीक है, ये जो है this is commutator. यहाँ पे commutator क्या करता है? commutator take the samples. ठीक है, हर एक सिग्नल के सैम्पल्स लेगा. जो हम बोल रहे हैं ना कुछ पोर्शन वाली बात, दैट इज़ द कम्यूटेटर यहाँ पे यही कर रहा है कि हर एक मैसेज का एक सैम्पल लेके अपने पास रखेगा और पर्टिकुलर टाइम के बाद ये लेता जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है? यहाँ पे एग्जैक्टली एक रोटेटिंग स्विच होता है.
ठीक है, रोटेटिंग स्विच होता है जिससे ये अपना काम करता है, सैंपल्स लेता है. देन इट इज़ कनेक्टेड विद द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर. ठीक है, यहाँ पे हमने पल्स मॉड्यूलेटर यूज़ किया है और यहाँ पे क्लॉक पल्स भी अप्लाई करनी होती हैं. ठीक है, ये फिर हम पल्स मॉड्यूलेटर हम जो ले रहे हैं इसको हमने कहाँ पे अप्लाई कर दिया, इसको हमने अप्लाई कर दिया है एक चैनल के साथ, कम्युनिकेशन चैनल के साथ. कम्युनिकेशन चैनल क्या हो जाएगा, जिसमें हम मैसेज को हमारे पास कर रहे हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम हमारे मैसेज को पास कर रहे हैं. तो पल्स मॉड्यूलेटर का यूज़ ये होता है कि मतलब ये जो हमने पल्स मॉड्यूलेटर यूज़ किया है चैनल के पहले, इसका पर्पस ये है कि जो भी मल्टीप्लेक्स सिग्नल है उसको एक सुटेबल फॉर्म में चैनल में पास करने के लिए बनाएगा, सुटेबल फॉर्म में लेके आएगा. देन कम्युनिकेशन चैनल से पास होने के बाद हमारा सिग्नल अप्लाई किया पल्स डीमॉड्यूलेटर पे. ठीक है, पल्स डीमॉड्यूलेटर है जो ये क्या करेगा, इट डीमॉड्यूलेट करेगा, है ना, डीमॉड्यूलेट करेगा. और एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. किसका, पल्स मॉड्यूलेटर का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है पल्स डीमॉड्यूलेटर. ठीक है, देन अगेन एट द रिसीविंग साइड वही चीज़ें यूज़ हुई हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने एक डीकम्यूटेटर अप्लाई किया हुआ है. डीकम्यूटेटर यहाँ पे हमने यूज़ किया है. अगेन यहाँ पे भी उसी तरह का स्विच होगा, एक स्विच रिसीविंग साइड पे भी होना चाहिए जैसे हमने इनपुट साइड में देखा था, ट्रांसमिटिंग साइड में देखा था, उसी तरह से एक स्विच रिसीविंग साइड पे भी होता है. अब यहाँ पे जो हमारा डीकम्यूटेटर है, डीकम्यूटेटर से हमने किस पे कनेक्ट करा है, हमने लो पास फिल्टर पे अप्लाई करा है. ठीक है, अगेन हमारा जो डीकम्यूटेटर के आउटपुट हैं उसको हमने अप्लाई कर दिया है हमारे लो पास फिल्टर पे. ठीक है, तो हर एक लो पास फिल्टर में उसका रेस्पेक्टिव मैसेज चला जाएगा. तो जो भी हमारा आउटपुट मिल रहा है हमें वो कहाँ से होता हुआ किसके थ्रू मिलेगा, दैट विल बी थ्रू लो पास फिल्टर. दूसरी चीज़, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ. इनपुट साइड में जो हमारे फिल्टर्स हैं दैट आर एंटी अलाइजिंग फिल्टर, एंड आउटपुट साइड में जो हमारे फिल्टर्स हैं दीज आर रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर. इनको हम रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर बोलते हैं.